look here. MRF में जाएगा, जो मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी है वहाँ जाता है, वहाँ पे फिर पूरा सेग्रीगेट होता है जैसे आशीष जी ने बताया, और जो रिसाइकलेबल है वो रिसाइकलिंग यूनिट में चले जाता है, जो नॉन रिसाइकलेबल होते हैं उनको हम फिर प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। मशीन साहब है सर हमारे। काम करते हैं और कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आता ही है। जैसे हमारा कोई वी आर यूजिंग इन अ डेली लाइफ, उसको अगर हम राइट वे में डिस्पोज कर पाएँ, और हम मोस्ट ऑफ द डिस्कशन में हम गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबल कराते हैं कि म्युनिसिपैलिटी इज नॉट डूइंग देयर जॉब, द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग देयर जॉब। तो फिर इस पे काम तो कर। So which is why with IPCA we launched this initiative called My 10 kg, which will come to your household, pick up this plastic waste, and going forward we will even be looking at the community or the RWA that collects and submit the most number of plastic will also be rewarded. Ashish. बहुत सारे पॉलीमर बेस्ड प्लास्टिक के अलग रिसाइकलिंग इंडस्ट्री वेस्ट होता है, जैसे आपके नमकीन के रैपर्स हैं, टॉफी के रैपर्स हैं। Community asked why we need to segregate plastic and what will happen to my segregated waste. So my 10 kg plastic, if you allow, I can. 10 kg, because we are generating plastic, 10 kg plastic in a year. So at least we can carry this responsibility. If I am generating 10 kg plastic, so if I take the responsibility of collecting at least in a year, so I can become plastic neutral. Like Dabur become plastic positive company, you can also become plastic positive citizen. My consumption in a year is 10 kg. If I collect 10 kg plastic and hand it over to the recycling industry for its recycling, I become plastic neutral citizen. If I collect more than 10 kg, I will become plastic positive citizen. So we can give certificates, awards, incentives who are collecting this. So this is a very small contribution, and many times people say ki why we need to segregate plastic campaign in Jammu. So whoever is keen to hand over your segregated waste for the recycling. Basically, Pollution Control Board is the prescribed authority for the implementation of rules. मोटिवेटेड होती है और निकलता ही नहीं है कोई वेस्ट। Doesn't even segregate the waste. So this is something which is very concerning me, and I wanted to put it forth before the audience. It's like even the segregation is not happening. So once the segregation is not done, how can we expect that other things will happen? So this is what is my personal experience, and other people sitting here also might be knowing about this. That this segregation, which is so very important, segregation of the source. क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं वो इस चीज़ से फेस कर रहे हैं कि हम सबको लगता है कि हमारा इशू नहीं है, क्योंकि हम अपना घर साफ रख रहे हैं, वो कूड़ा हमारे घर से जब तक निकल नहीं जाता हमारा काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बट वहीं से वो काम अगर देखा जाए तो शुरू होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो उस कचरे के जो भी साइड इफेक्ट्स जो हम देख रहे हैं या जिनको आज मैनेज करने की हमें ज़रूरत पड़ रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सही मायने में जो अर्थ घर है, आज हम कहीं और ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं, पर जहाँ पे ज़िंदगी है वहाँ से ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। सो आई थिंक द रीज़न फॉर दैट इज़ ऑफ कोर्स द अनअवेयरनेस, आई वुड से, क्योंकि लोग बहुत सारे आज भी, मैं एक रूरल एरिया से आता हूँ मीरा साहब से, वहाँ पे आज भी लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि उनको ये अपना जो कचरा है, जो हाउस होल्ड वेस्ट है, उसको सेग्रीगेट क्यों करना है। वेरी राइटली मैम हैज पॉइंटेड आउट कि क्यों करना है। एंड आई मस्ट से दैट everyone who is concerned about and I agree to it that segregation is not happening, but segregation has to happen from your end. जो अगर हम ये जान लें कि हमारी मुट्ठी में वो पावर है कि हम ये जीत सकते हैं, हमें ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि
arrangement for you. Now I request Ajay ji from IPCA to come forward and take the launching program ahead. लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, तो आपका सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। सबसे पहले मैं जो डाबर टीम का, डाबर से जो आए हुए हैं, सर मैं आपका बहुत बहुत और आपकी टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपकी टीम को, क्योंकि बेसिकली डाबर का काम कुछ और है, डाबर जूस बनाता है। जाके डाबर सोसाइटी के लिए क्या कर सकता है, ये डाबर की पहल प्लास्टिक कलेक्शन, EPR, CSR, स्कूलों में अवेयरनेस, डिफरेंट तरीके से जो आप सोसाइटी में जाके अपना योगदान दे रहे हैं। सर इस सोच को, इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से, IPCA की तरफ से, IPAT की तरफ से हम सल्यूट करते हैं कि आपका ये योगदान सोसाइटी के लिए, क्योंकि काम तो सभी करते हैं पर काम से हटके अलग आप क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आदमी की नॉर्मल एज होती है, तो लेकिन एक रैक पिकर या वेस्ट उठाने वाले लोग हैं, उनकी एज 55 ईयर है या 50 ईयर्स है, क्योंकि वो हमारे वेस्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं। जो कूड़ा हमने मिक्स करके दिया वो उसमें से अपनी दिनचर्या ढूंढ रहा है और चाहते ना चाहते एनवायरनमेंट के लिए बेहतर कर रहा है। तो हमें किसी ने हक नहीं दिया है कि किसी एक व्यक्ति की लाइफ को हम दांव पे लगाएं। हम बोलते हैं कूड़े वाला आ गया, जनरली कूड़े वाले हम सब हैं, वो तो सफाई वाला है, सफाई वाला हमारे बीच में आया है। तो जैसा कि व्यास सर ने शुरू में भी कहा था कि जो स्कूल के बच्चे हैं, मतलब दे आर द रियल एम्बेसडर, जो आने वाली सोच को, जो अभी मेरे साथी मित्र ने बहुत अच्छी बात बोली कि स्कूल में, कॉलेज में आने वाले बच्चों को किस तरीके से हम वो मैसेज दे पाए। क्योंकि मुझे आजकल लगता है कि बच्चों को अगर स्कूल में टीचर आपको 2 into 2 5 बता दे, तो घर पे आके वो आपको 5 ही बताएगा। कॉर्पोरेशन से कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बैठे हुए, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके सामने आज मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। ऐसा है कि एक साल मुझे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हेल्थ एंड सैनिटेशन का चेयरमैन बनने का मौका मिला, और उस दौरान मैं और मेरी पूरी टीम ने पूरा मन लगा के, पूरे जी जान से इस जम्मू को स्वस्थ जम्मू बनाने की कोशिश की। कुछ लोग यहाँ पे आज भी साक्षी हैं कि वो पीरियड कैसा था। आज जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने जम्मू को स्वच्छ जम्मू नहीं बना सकते। डायरेक्टर इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, आज हमने जम्मू में एक पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया कम्युनिटी के रोल को समझने के लिए कि एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए। और इसमें हमारे साथ JMC से जॉइंट कमिश्नर, जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डाबर एक बड़ा ब्रांड है उसके CSR हेड, प्लस में हमारे काउंसलर साहब ने सहभागिता दिखा के अपने विचार रखे। उनके जो कंसर्न हैं, जो चैलेंजेस हैं, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या क्या कंस्ट्रेंट है उसको कैसे रिमूव किया सकता है, इन सब विषयों पर आज चर्चा की। और साथ ही के साथ IPCA ने डाबर के साथ मिलकर एक माई 10 kg कैंपेन शुरू करा, जो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करेगा। प्लास्टिक वेस्ट को घर पे सेग्रीगेट करके उसको कैसे हम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तक पहुंचा सकते हैं, ये एक कैंपेन बनाया गया जिसका नाम है माई 10 kg प्लास्टिक कैंपेन। ये एक माई 10 kg प्लास्टिक कैंपेन में एक स्पेशल व्हीकल जम्मू के शहरों में, जम्मू की गलियों में घूमेगा और लोगों तक डायरेक्ट कनेक्ट होगा, लोगों के द्वारा सेग्रीगेट किया प्लास्टिक उठाकर उसको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तक पहुँचाने का काम करेगा। एक कैंपेन लॉन्च किया गया है IPCA की तरफ से, तो उसमें पैनल डिस्कशन रखा गया जिसमें इम्पोर्टेंस कितना है प्लास्टिक से सेग्रीगेशन का, वो हमने डिस्कस किया। और पार्टिसिपेटिव था, इंटरेक्टिव एक्शन था, और इसमें सारे स्कूल के बच्चों ने और हमारे सैनिटेशन स्टाफ ने पार्टिसिपेट किया। और ये कैंपेन बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा अगर लोग उस चीज़ को फॉलो करें और प्लास्टिक कलेक्ट करके इस गाड़ी को दें, तो प्लास्टिक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और रिकवरी फैसिलिटी में जाके इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। यही पर्पस था आज के इस कैंपेन।